they are the heart of it. Their role goes far behind the administrative duties. They are visionaries, they are mentors, they are managers, they are counselors, they are community builders and driving force behind academic excellence. Principals are responsible for setting the tone and culture of the school. They guide teachers, nurture students, manage parents' expectations and ensure compliance with educational policies. But this part is not without its sharing of challenges. So here on this dais, we are completely going to appreciate each and every educator, principal, trustee who have travelled all across Maharashtra for this Maharashtra Shiksha Bhushan Puraskar. कुठेतरी मला जेव्हा मी आय एम दी ट्रस्टी ऑफ स्कूल आय ऑलवेज फील पण माझी जी जर्नी होती ट्रस्टी बनण्याची ती प्री प्रायमरी सेक्शन पासून सुरू झाली 25 वर्ष आधी. तर सगळ्यात आधी मी शिक्षक आहे. Whenever you meet parents, you always expect the same thing, that is माझ्या मुलाला छान शिकवा, त्याला सोसायटीत काहीतरी छान त्याला पोझिशन मिळालं पाहिजे, तो खूप प्रगती त्याची झाली पाहिजे असं काहीतरी शिकवा. And I think somewhere here you all are also parents. You also feel the same. मेरा बेटा पढ़ा लिखा होना चाहिए and बहुत अच्छे पोजीशन पे ग्रो करना चाहिए. So what I feel, there are only two places where you can develop a child, and one is the home and second is the school. Only the academic curriculum is not sufficient to make the child successful. Along with that, we are in India where we are blessed with culture and tradition, which we are imbibing in our children, we are inculcating in our children. So we always feel proud कि इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे सभ्यता, संस्कृति और सादगी यहाँ पे ही मिलती है. राजपूत संगीत मान बिल्कुल विकसित भारत संकल्प यात्रा. So she is the spark, right? Children are always young minds. सब लोग मैम अच्छे से एकदम खड़े हैं. सर आप बहुत दूर खड़े हैं. फेस ऑफ डीएवी एंड आईडीबीएस यूबीएस फ्रेंड्स कॉलेज. जो गरीब बच्चे होते हैं, जो रोड पे सिलाई का काम करते हैं, झाड़ू मारते हैं, स्लम एरिया में जो बच्चे हैं, जिनके घर में पैसे हो तो कहीं भी जाकर पढ़ लेंगे, लेकिन इन बच्चों का कौन देखेगा. तो इन बच्चों के लिए मैं सब कर रही हूँ कि इतने कम पैसे में ऐसी ऐसी चीजें बनाऊंगी कि देश का हर बच्चा इसरो का नाम जानेगा, देश का हर बच्चा इसरो के बारे में सोचेगा और देश का हर बच्चा इंडिया की सैटेलाइट और रॉकेट बिल्ड करेगा. ये इसकी सोच है. मुझे लगता है कि आप सभी सपोर्ट करेंगे और आने वाले समय में मुंबई में बहुत बड़े कार्यक्रम करने. सली में वहाँ पर बैठी हुई है, मैं भी उसको ऑर्गेनाइज करने वाली. मैम थोड़ा सा प्लीज, मैं भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ प्रोग्राम को. वो गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के साथ हमारी इनिशिएटिव आ रही है जिसकी पूरी रॉकेट बनाने की जिम्मेवारी इस बच्चे की है. पूरी बच्चों को ट्रेनिंग यही देने वाली है. एंड देयर आर सम 3 पॉइंट्स यू वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, सो प्लीज. मैंने रॉकेट बनाना कैसे चालू किया, तो जब मैं छोटी थी तब मेरे दादाजी मुझे डीडी चैनल पे एक सीरियल आती थी शक्तिमान, वो दिखाते थे. उसी दिन संडे को कभी कभी इसरो की लाइव रॉकेट लॉन्चिंग आती थी. मैं जब देखती थी तब मेरा भी एक सपना था कि मैं भी बड़े होकर अपने भारत माता के लिए रॉकेट बिल्ड करूं
जो कि सब बच्चे बना सकते हैं कम खर्च में। अब अगर हमने रॉकेट का नाम सुना तो लगता है बहुत खर्च आएगा, रॉकेट साइंस बहुत हाई लेवल है, हार्ड है, तो इसीलिए हमने ऐसा तरीका लाया कि आसानी से वेस्ट मटेरियल से रॉकेट बना सकते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ रॉकेट, दिस इज लॉन्च लग, this is nose pole which is fully made up of PVC pipe. This launch legs are 2 launch legs we use. This both are of PVC, and these are the fins we use, 4 fins to balance the rocket, and this is also made up of cardboards. See, this is the motor of which is made up of PVC pipe. You can see here one hole is there. For this we put igniter to ignite the rocket. From the outside of this motor we put M-seal, and middle of we use 2 chemicals, sugar and potassium nitrate. Sugar as a fuel and potassium nitrate as an oxidizer. Then we cover the motor with the epoxy. So this is how we made the motor. The rocket is balancing. This is called center gravity check. This is a center of pressure checking. So the rocket is doing radial motion, it is balanced and it is ready to fly. Be ready all the SSC and HSC prize winners. All the dignitaries, please felicitate him. Our bronze medal winner from India. That's a great thing has happened. A little appreciation from all the sides make all the futures bright. That is a good thing. Congratulations. Please give them a round of applause. They are the winners. Medals, we appreciate you, your parents. Best of luck for your bright future. Please give them a big round of applause. They are the winners. आज के दिन आपको स्वीट क्लैपिंग करना आपने जो ये काम किया है, जो लोगों को दिखाया है और बताया है कि हमारे देश में जो लड़कियां हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, और आपने ये प्रूव किया है कि आसमान में रॉकेट बनाना ही नहीं, आसमान को छूना भी लड़कियां जानती है। तो हमारे देश को आपके जैसी लड़कियों की जरूरत है, आपके जैसे बच्चों की, जो हमारे भारत को आगे लेके जाएंगे, और आप हमारे देश का फ्यूचर हो। पूजा हैज आउटस्टेड हरसेल्फ, उसने इतना बड़ा रॉकेट बनाया है, कितना ब्रिलियंस है, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी शेयरिंग कहते हैं ना सेम रूम इन द प्रेजेंस ऑफ सच अ ब्रिलियंट गर्ल। वी आर प्राउड ऑफ यू पूजा, वेयर वी केम टू मीट हर। पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर पीके राजपूत। मैं अहमदाबाद से आता हूँ। मैं कॉर्पोरेट पर्सन हूँ और साथ में काफी यूनिवर्सिटीज, काफी स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे हमेशा गर्व होता है कि IDYM के प्लेटफॉर्म पे आकर के बात करना और बच्चों से मिलना, बिकॉज जो बच्चे हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन है। जो प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि 2047 में स्वर्णिम भारत जब 100 साल पूरे होंगे तो हमारा हर बच्चा जो है उस तरफ अग्रसर रहेगा, विकसित भारत की तरफ रहेगा। तो पूजा के काम से एक नई उम्मीद जग गई है पूरे हिंदुस्तान में ये कि एक बच्चा जो कि इस जगह से आता है, उसकी जो जील और जेस्ट है, जिसकी वजह से उसने सोचा कि जो छोटे छोटे जो कि रद्दी की चीजें फेंकी जाती है उससे पूजा ने बनाया, और आज ये रॉकेट 2000 फीट से ऊपर गया, जिससे कि 7.5 लाख बच्चे जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, और स्पेशली जो पूजा के दिमाग में है कि जो बच्चे जो आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं वो स्पेस साइंस के बारे में बात करें, स्पेस साइंस को लेके जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में
स्पेस साइंस चौथा बड़ा एक सेक्टर होने जा रहा है आने वाले टाइम में, और IDYM के बेस से और पूजा का जो एक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उससे हम बहुत आगे लेके इसको जा सकते हैं, जो कि रवि जी जो IDYM के डायरेक्टर हैं, उनका एक सपना है, उनका मिशन है, उनका एक विजन है, और वी ऑल आर ए पार्ट ऑफ हिज विजन एंड मिशन। विकसित भारत एक बहुत एक पायस सोच है, बिकॉज हमारा जब इतिहास देखिए तो 5000 साल पुराना इतिहास था, जिसमें से कि हम लोग हमेशा जो है हर पूरे इंटायर हमने पूरे वर्ल्ड को कुछ न कुछ दिया है, वही चीज पे हमारा काम हो रहा है। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जिस हिसाब से हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं, सबके साथ मिल करके, सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत एक बहुत बड़ा सपना नहीं, एक जो है रियलिटी में आने वाला है, और उसमें जो हमारे आने वाले बच्चे हैं एक बहुत बड़ा वो पाठ पूरा करने जा रहे हैं। इसीलिए हर तरफ से बच्चों को NEP गाइडलाइंस, NCF गाइडलाइंस जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो विकसित भारत का एक बहुत बड़ा एक सॉलिड पिलर होने वाला है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे पास 2 वीरांगनाएं जो आकर के बात करके गई, सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह, उन्होंने ये बता दिया कि आज की देश की जो हमारी जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जा सकती हैं, और उन्होंने ये शो कर दिया जिससे कि 140 करोड़ जनता को और जो भारतीय हैं उनको उन पे नाज है। मैं भी इनको सैल्यूट करता हूं और बोलता हूं जय हिंद, जय भारत, वी आर वेटिंग फॉर विकसित भारत। मुझे तो अपने बेटी पर बहुत ही गर्व महसूस होता है कि उसने इतना अच्छा रॉकेट बनाया है, और वो उड़ा लॉन्च कर भी दिया है। लड़का और लड़की में भेदभाव ना करे, लड़की को भी पढ़ाए लिखाए। मैं महाराष्ट्र के जाना डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। अभी मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। ओके, ये मिशन उड़ान क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। मिशन उड़ान एक ऐसा हमारी एक ऐसी अभियान है जिसमें हम बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान देते हैं। अभी तक हमारी टीम ने 100 से ज्यादा देशों में अंतरिक्ष के बारे में बताया है, और भारत के लगभग सभी राज्यों में 7.5 लाख बच्चों से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी। जी, आपने ये मिशन उड़ान की शुरुआत क्यों की? मैं टीवी पे देखती थी, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, वो हमेशा कहते हैं कि 2047 से पहले हमें भारत को विकसित बनाना है। तो इसी बात को मैं सुनती थी, और मुझे लगा कि अगर मैं एक बच्चा अगर आगे बढ़ेगा, अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरे साथ और 100 बच्चे आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही हमारा भारत देश आगे जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भविष्य में क्या करना चाहती हैं आप? इस टेक्नोलॉजी से हम गरीब बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम जो बच्चे जिनके पास सब कुछ है उनको बताएं, जो गरीब बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते उनको इस टेक्नोलॉजी से फायदा हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर मिशन किया है, जिस तरह से हमारी भारतीय महिला का सिंदूर बचाया है, उससे मैं सभी हमारे जो आर्मी फोर्सेस में जो भी आर्मी है उनको सलाम देना चाहूंगी। और अभी रक्षाबंधन आने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के हाथों से बनाकर राखी उनके लिए भेजूं, और स्पेशली वो बॉर्डर पे जिस बॉर्डर का नाम ऑपरेशन सिंदूर है।